اردو ناول روح عشق قسط نمبر 9۔ وہ گارڈن میں درخت کے سائے میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اسے پہلی بار زرمین ملی تھی۔ وہ کچھ الجھا سا تھا، مانو کوئی بات تھی جو پریشان کیے ہوئے ہو۔ کیا کر رہے ہو یہاں اکیلے بیٹھ کر؟ نہایت دلکش آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ سوچ رہا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اوہ، تو آپ سوچتے بھی ہیں؟ کہاں چھپا کر رکھا تھا یہ ٹیلنٹ اب تک؟ اس حسین لڑکی نے ٹکا کر ذلیل کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ایسے بہت سارے ٹیلنٹ چھپے ہوئے ہیں مجھ میں، تم ڈھونڈنے والی تو بنو۔ عبد المنان بلا کا ڈیٹھ اس پر کہاں اثر ہونا تھا، بلکہ الٹا محبت کی جال آنکھوں سے پھینکتے ہوئے شوہی سے بولا، جس پر وہ سر جھٹک کر مسکرانے لگی۔ بیٹھ جاؤں؟ وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ جہاں دل چاہے بیٹھو، ویسے بھی حویلی تمہارے باپ کی ہے۔ عبد المنان کی آنکھوں میں جو الجھا پن تھا وہ پڑ چکی تھی۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ عبد المنان سے بالکل لگ کر بیٹھی تو اس کا دل عجیب سی کیفیت میں آ گیا، مانو ایک سحر طاری ہوا ہو۔ وہ اپنے دل کو اس حسن سراپا کی جانب مائل ہوتا محسوس کرنے لگا۔ وہ حسن دلربا آنکھوں میں جھانک کر استفسار کرنے لگی، نہیں تو وہ نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے، عجیب بات ہے، آنکھوں میں تو بہت سارے سوال ابھرے ہیں، پر لبوں پر کیوں نہیں؟ اس کا لب و لہجہ عام انسانوں جیسا بالکل نہ تھا۔ جب وہ کلام کرتی کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس کے کلام میں ایک پر اثر مٹھاس تھی۔ جب اس نے عبد المنان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے کہا تو اس جیسا مضبوط عزائم رکھنے والا شخص بھی مبہوت ہو گیا۔ تم ایک خوبصورت پہیلی ہو جسے سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم میرے سوال سنتے ہی یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤ گی۔ وہ سنجیدگی سے کلام کرنے لگا۔ تو اس حسین پہیلی کو الجھا ہی چھوڑ دو۔ کیوں سلجھانے میں لگ گئے ہو؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیونکہ تم نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ وہ الجھ کر تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا۔ زرمین۔ اس کے لبوں پر یہ کہتے ہی پرسرار مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ جی نہیں، تم زرمین نہیں، وہ مر چکی ہے۔ عبد المنان فوراً ہی بول پڑا۔ تم نے بابا سے خود کا کہا تھا ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا، پر تمہیں یہ کیسے پتا؟ وہاں کمرے میں بابا اور میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے حیرت سے پوچھنے لگا۔ شاید میرے خرگوش کے کان ہیں اس لیے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے بڑے گلابی ہونٹوں پر پیاری سی ہنسی دیکھ کر عبد المنان کچھ ثانیوں کے لیے تو دیوانہ وار اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے تو اور بھی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ ایک سحر تھا جو عبد المنان اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ وہ خمار سے طاری کر رہی تھی اس پر، منہ میں الفاظ پھنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لڑکی عبد المنان پر اپنا سحر دیکھ کر مسکرانے لگی، مزید قریب آئی تو عبد المنان کی سانسیں تھمنے لگی۔ اس حسین لڑکی نے اپنا ہاتھ عبد المنان کے رخسار پر رکھا تو اس کے لمس سے عبد المنان کے پورے جسم میں سنسنی برقی روح کی طرح پھیل گئی۔ آج رات، ابھی وہ محبت سے چور لہجے میں بول ہی رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مانی مانی، کہاں ہو تم؟ شازمہ کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی عبد المنان اس حسین لڑکی کے طلسم سے نکلا۔ اچھا، بعد میں ملتے ہیں۔ وہ حسین لڑکی فوراً ہی کھڑے ہو کر جانے لگی۔ میری بات تو سنو، ایک بار بچی سے مل لو، اس کے دل میں چوکیدار بابا نے خوف بٹھا دیا ہے۔ وہ عبد المنان اس کا ہاتھ پکڑ کر ابھی بول ہی رہا تھا کہ شازمہ وہاں آن پہنچی۔ آپ کون؟ شازمہ نے اسے حسین لڑکی کو دیکھتے ہی تجسس سے سوال کیا۔ اس لڑکی کا حسن اس قدر قیامت خیز تھا کہ شازمہ لڑکی ہونے کے باوجود اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ میں زرمین۔ اس دلربا کے حسین ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے۔ کیا؟ زرمین؟ وہ شازمہ کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ پورا جسم خوف سے لرز اٹھا۔ وہ برق کی پھرتی سے عبد المنان کی کمر کے پیچھے آ کر اس کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑ کر پھنسے پھنسے لفظ ادا کرنے لگی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی، شازمہ کو خود سے خوف زدہ ہوتا دیکھ کر۔ میں زرمین ہوں، کوئی چڑیل تھوڑی۔ وہ لبوں پر تبسم سجائے بے تکلف انداز میں گویا ہوئی۔ شازمہ نے مارے خوف و دہشت کے اپنی دونوں آنکھیں زور سے میچ لیں۔ مانی، مجھے بچاؤ، پلیز مجھے بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے اپنی روشن پیشانی عبد المنان کی کمر پر لگا کر بلک کر کہا، جسے سنتے ہی عبد المنان نے اپنی پیشانی پر زور سے ہاتھ دے مارا، جبکہ شازمہ کی معصومیت دیکھ کر اس حسین لڑکی کے چہرے پر تبسم بکھر آئی۔
उफ बच्ची, क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुली हो? वो दांत पीसते हुए बोला। बच्ची, मैं तुम्हें भला क्यों मारने लगी? क्या तुमने कुछ गलत किया है? उस हसीन लड़की का सवाल अब्दुल मनान का जहन खटका गया था। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी मुझे तुमसे डर लगता है। तुम रूप बदलती हो और साथ साथ हम जात से बातें भी करती हो। अभी शाज़मा फंसी फंसी आवाज में अब्दुल मनान के पीछे से झांकते हुए उसे बोल ही रही थी कि अब्दुल मनान फौरन बीच में कूद पड़ा। वो रूप नहीं बदलती, तुम्हें वहम हुआ था। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ था, वो डट कर बोली। बच्ची, अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त खासा ध्यान रखा करो, क्योंकि कभी कभार ये अल्फाज बड़ी गहरी चोट पहुंचा जाते हैं। वो शाज़मा को सख्त लहजे में घूरते हुए बोली, मानो उसे इशारतन वार्निंग दे रही हो। तुम मुझे धमकी दे रही हो? शाज़मा अपने पूरे वजूद की हिम्मत जमा करके लर्जी हुई आवाज में पूछने लगी। बच्ची, तुम चुप रहो। अब्दुल मनान उसे फौरन चुप करवाने लगा। जमीन, उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब है। वो शाज़मा की तरफ से माज़रत तलब करने लगा। क्या? शाज़मा उसकी बात सुनकर बुरी तरह तपी थी। अपना डर और खौफ भूल कर वो अब्दुल मनान के रूबरू आकर, तुम उसकी खातिर मुझे पागल बोल रहे हो? वो बेचारा दोनों के बीच बुरी तरह फंस गया था। वो दोनों सो, सौतनों की तरह लड़ने पर आमादा थी। मैं जा रही हूँ अब्दुल मनान, तुम अपनी जंगली बिल्ली संभालो। वो हसीन लड़की जाते हुए भी शाज़मा की मिर्चें गा गई थी। तुम मुझे जंगली बिल्ली बोल रही हो? कौन सा खौफ, कहाँ का डर? अब तो शाज़मा कमर पर हाथ रखकर मैदान में आ गई थी। कहाँ जा रही हो? रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई। मानी, छोड़ो मुझे। अब्दुल मनान के लिए शाज़मा को काबू करना मुश्किल पड़ रहा था। उसने पीछे से शाज़मा को रुकने की नीयत से जैसे ही अपने सार में लिया, शाज़मा ने उसके जिस्म के सबसे नाजुक हिस्से पर घुटना दे मारा। वो एक जोरदार चीख मारता हुआ जमीन पर आया। मेरी नस्लों के दुश्मन, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो दर्द से तड़पते हुए बोला। तुम बजाय मेरी साइड लेने के उस जिन्नी की साइड ले रहे थे। ऊपर से घटिया इंसान, उसके सामने नंबर बढ़ाने के चक्कर में मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। ये तक बोल दिया। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। वो शेरनी की तरह दौड़ते हुए जब करीब आने लगी तो अब्दुल मनान फौरन बोला, क्या बच्चे की जान लेकर छोड़ोगी आज? प्लीज़ मेरी बच्ची, थोड़ा ब्रेक ले लो। मैं अभी दूसरा ल हमला बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। उसका बेजारगी वाला चेहरा देखकर शाज़मा को ज़रा तरस आ गया। ठीक है, पर उदार रहेगा। वो नीचे की जानिब झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर तरस खाते हुए बोली, हाँ हाँ मेरी माँ, बस 4 पर 5। अब्दुल मनान दोनों हाथ जोड़कर बेजारी से बोला, अब उठाओ तो सही। वो पुरअमीन नजरों से हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए, मैं क्यों उठाऊं, अपनी जमीन से कहो। वो दोनों हाथ फोल्ड कर कर अकड़ कर बोली। उसके लहजे में जलन का अंसर काफी नुमाया था। हद है वैसे। कहाँ तू इतना डर रही थी और कहाँ उसी से लड़ने खड़ी हो गई। वो खड़े होकर अपनी पैंट पर लगी मट्टी झाड़ते हुए ताज्जुब से बोला, तुम मुझसे बात मत करो। वो दांत पीसते हुए घरा कर बोली, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो आ जाना। अब्दुल मनान ने कहते ही तेजी से दौड़ लगा दी। मानी, मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, रुको मेरे लिए। वो भी तेजी से उसके पीछे दौड़ी। यार, कोई टैक्सी क्यों नहीं मिलकर दे रही? अब्दुल मनान परेशान होकर गोया हुआ। अगर हम लेट हो गए तो बूढ़े बाबा ने हमें छोड़ना नहीं है। मेरी जॉब का तो आज टाटा बाय बाय हो जाना है। अल्लाह, काम मिलेगी टैक्सी। वो रोतू सा चेहरा बनाकर मुसलसल तोते की तरह नॉन स्टॉप बोले चली जा रही थी। अबे यार, चुप हो जाओ, रहम खाओ मेरे कानों पर। वो झुंझलाकर बोला तो शाज़मा घूर कर उसे देखने लगी। किसी को लिफ्ट चाहिए? अचानक से एक कार आकर उन दोनों के पास रुकी। कासम, तुम? शाज़मा उसे देखते ही मुसर्रत भरे लहजे में गोया हुई। अलबत्ता अब्दुल मनान को उसे देखते ही पारा हाई हुआ था। नहीं चाहिए, अब्दुल मनान ने स्पॉट से जवाब दिया। क्या? क्यों नहीं चाहिए? 1 घंटे से इस सुनसान सड़क पर खड़े हो, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अब अल्लाह अल्लाह करके एक नेक शख्स मदद कर रहा है तो तुम्हें नहीं लेनी? क्या कोई नट ढीला है तुम्हारा? वो गुस्से से भड़क कर बोली। नेक शख्स? अब्दुल मनान की पेशानी पर चंद बल नमूदार हो गए थे। उसने शाज़मा के जुमले में मौजूद वाहद काबिल तराज लफ्ज पर जोर देते हुए उसे दोहराया। हाँ बिल्कुल, नेक शख्स जो इस वक्त हमारी मदद कर रहा है। शाज़मा खासा जुटाते हुए बोली, मिस शाज़मा, आप आ जाएं, इसे छोड़ दें, ये खुद ही आ जाएगा। यहाँ सुनसान सड़क पर खड़ा होना आपके लिए ठीक नहीं। कासम ने मौके पर चौका लगाने की पुरजोर कोशिश की। वो अब्दुल मनान की शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी कार में आकर नहीं बैठेगा। तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है वो यहीं खड़ी रहे। अब्दुल मनान घबरा कर दो टोक अंदाज में बोला।
आप मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। जवाबी कार्रवाई में कासम उसे खा जाने वाली निगाह से घूरने लगा। नहीं नहीं, रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। शाज़मा के कहते ही अब्दुल मनान हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। अलबत्ता कासम ये सुनते ही खुशी खुशी कार से उतरा। तुम मुझे छोड़कर इस कमीने के साथ जाओगी? अब्दुल मनान ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर ताज्जुब से पूछा। हाँ, क्यों? साइड बदलने की इजाजत सिर्फ तुम्हें ही है। शाज़मा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने साइड नहीं बदली, मैं तुम्हें बचा रहा था, बेवकूफ लड़की। वो गुस्से से शाज़मा के बाजू पर पकड़ मजीद मजबूत करते हुए बोला, तुमने फिर बेवकूफ कहा। अब तो मैं एक मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी तुम्हारे पास। वो बुरी तरह जलकर अपनी पूरी कुव्वत से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम कहीं नहीं जा रहे डार्लिंग, अब्दुल मनान अपनी जानब खींचते हुए बोला। अगले लम्हे वो उसकी कशादा सीने से आ लगी थी। तो क्या खड़े होकर हमें घूर रहे हो? जाओ। कासम कार का दरवाजा खोले खड़ा हो गया। अब्दुल मनान ने उसे हाकमाना अंदाज में कहा, तुम एक लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कासम उसे शाज़मा के साथ जबरदस्ती करता देखकर गुस्से से बुफर कर बोला, मेरी मंगेतर है, जो दिल चाहे करूं, तुझे क्या? अपना रास्ता नाप। अब्दुल मनान ने सख्त लहजे में जवाबी कार्रवाई की। मानी, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है, छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब्दुल मनान मजबूती से उसकी नाक कमर तक एक हाथ से सार में जकड़े हुए खड़ा था। वो नाजुक सी गुड़िया मुसलसल कोशिश कर रही थी खुद को सितमगर से आजाद करवाने की, पर उसकी पकड़ के आगे शाज़मा की हर कोशिश नाकाम थी। तुम्हारी मंगेतर? कासम बेयकीनी से, हाँ मेरी मंगेतर, अब जा। अब्दुल मनान गिराते हुए एलानिया बोला, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शाज़मा को पारा अब आसमानों से बातें कर रहा था। कासम पांव पटकते हुए चला गया। उसके जाते ही अब्दुल मनान ने मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी। इस बार शाज़मा जख्मी शेरनी की तरह हमला करने के लिए लपकी, मगर अब्दुल मनान उस पर पकड़ ढीली छोड़ते ही तेजी से भागने लगा। मानी के बच्चे, भागकर कहाँ जा रहे हो? डरपोक कहीं के। शाज़मा ने अपनी सैंडल उतारकर उस पर दे दर पे वार किए। वो बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पहली को तो डुच कर गया था, जबकि दूसरी वाली सैंडल बस मुंह का बोसा लेने ही लगी थी कि वो बर्फ की तेजी से नीचे की जानब झुका। मुझे नफरत है तुमसे, वो दांत किचकिचाते हुए कहकर पास ही मौजूद एक बंच पर मुंह लटकाए बैठ गई। लो पहनो। अब्दुल मनान उसकी दोनों सैंडल कदमों में रखते हुए बड़े प्यार से पहनाने लगा। तुम जहर लग रहे हो, वो गिराते हुए। तो तुम मुझे कौन से शहद लगती हो? पहन लो वरना पाँव में कुछ चुभ जाएगा। वो वाकिफ था कि ठीक ठाक तपा चुका है उसकी, इसलिए अब मोहब्बत से मरहम लगाने लगा। मैं खुद पहन लूंगी, दो मुझे। वो उसके हाथ से सैंडल लेने की कोशिश करने लगी। सॉरी, मुझे पता था मैंने अपनी हद पार की है, पर मैं दोनों बार तुम्हें ही बचा रहा था। वो सैंडल बड़े प्यार से पहनाते हुए गोया हुआ। मुझे कैसे? वो उलझ कर। पहले सैंडल पहना दूं? अब्दुल मनान जैसा शहजादा जो खुद खड़े होकर पानी तक न पीता हो, वो कदमों में बैठकर सैंडल पहनाए तो कैसे कोई फिदा न हो। वो हैरत से उसे तक रही थी, जो इस लम्हे उसे सैंडल पहनाने में मगन था। सारा गुस्सा खफगी मानो उससे छू मंतर कर दिए थे। वो बड़े प्यार से उसके हसीन चेहरे को तकने लगी। बस इस लम्हे शाज़मा को लगा वह दिल पूरी तरह अजहार बैठी उस बिगड़े हुए नवाब पर। चले। वो सैंडल पहनाकर खड़े होते हुए बोला। कहाँ? वह बुरुज झुकाकर, भाकर शादी करने। वो चेहरे के मुकाबिल झुककर शोही से बोला, कुछ भी फालतू। वो लापरवाही से मुंह चढ़ाकर, क्यों, हम भाकर शादी नहीं कर सकते? वो शरारत से पूछने लगा। शाज़मा ने उसकी शर्ट भरी नजरें पड़ते ही जोर से अपना सर उसकी पेशानी से टकरा दिया, जिस पर वो सर मसलते हुए खड़ा हुआ। जब देखो मुझ नन्ही से जहाँ पर तजद्दुद करती रहती हो, कसम से जहर लगने लगी हो। वो दांत किचकिचाते हुए मुंह बसोर कर बोला, हाय शुक्रिया, बड़ी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। वो मुस्कुराते हुए आंख दबाकर बोली, बूढ़े बाबा ठीक कह रहे थे, मेरी सोहबत का बहुत गलत असर हो रहा है तुम पर। शाज़मा का आंख मारकर बात करना अब्दुल मनान को शॉक्ड कर गया था, जिस पर वो अपना दिल थाम कर एक कदम उससे पीछे हटने हुए बोला, जबकि शाज़मा के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तो अब बताओ, कैसे बचा रहे थे तुम मुझे? वो दोनों पैदल चलते हुए बस स्टॉप की जानब जा रहे थे। पहले एक सवाल का जवाब दो। पूछो, क्या तुम्हें भी उसकी जानब कोई खिंचाव महसूस होता है? अब्दुल मनान तजस्सुस से पूछने लगा। वो इतनी खूबसूरत है, किसी को भी होगा। क्या तुम मुझसे इसके कसीदे सुनने के लिए इस तरह के सवाल कर रहे हो? वो एक हाथ कमर पर टिका कर तेजी से उसके आगे आकर आहिस्ता रास्ता रोकते हुए बोली, नहीं। उफ, तुम लड़कियां इतनी
जल तड़न टाइप क्यों होती हो? वो अपना सर पकड़कर झुंझलाकर गोया हुआ। कौन जल रहा है? तुम्हारी उस जिन्नी से? पहले मेरे सैंडल। आवारा लट जो चेहरे पर आ गई थी, उस पर मुंह से फूंक मारकर उड़ाते हुए उतराकर बोली, सैंडल नहीं, जूती होता है। कोई बेचारे मुहावरे की टांग तोड़ दी है। वो सर पर हल्के से दप लगाकर बोला, मुझे आता है, वो तो मैंने सैंडल पहन रखी है, इसलिए कहा, ताकि रियल वाली फीलिंग आए। वो अपना भरम कायम रखने के लिए गलती कवर करने लगी, जिस पर वो सर झटक मुस्कुराते हुए आगे चल दिया। अच्छा, अब तो बता दो, पहले भागो, इससे पहले ये बस निकले। क्या? अभी वो बस की जानब मोड़कर देखी। अब्दुल मन्नान ने उसका हाथ मजबूती से थामकर बस की जानब दौड़ लगा दी। शुक्र वो दोनों भागते हुए बस में चढ़े। अल्लाह! वो बैठकर एक लंबा सांस भरते हुए, रात के सुबह पूरी बस में सिर्फ 3-4 पैसेंजर ही नजर आ रहे थे। अब्दुल मन्नान उसके साथ ही बैठ गया। अब तो बता दो, वो मिनती अंदाज में, तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा था, वो तुम्हें धमकी दे रही थी। अब्दुल मन्नान के कहते ही वो बोला सा चेहरा बनाकर नफी करने लगी। तो क्या, मैं कौन सा उसकी धमकी से डरती हूँ? वो भरम से अकड़ कर बोली तो अब्दुल मन्नान के लिए अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। हाँ जी, बिल्कुल, तुम कहाँ डरती हो? वो तंजिया बोला तो जुआबन शाज़मा घूरने लगी। और दूसरी बार अभी वो बोल ही रहा था कि शाज़मा ने लापरवाही से उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर कहा, छोड़ो, मैं जानती हूँ तुमने क्यों मुझे जाने नहीं दिया। शुक्र, इतनी अकल तो है। वो मुस्कुराते हुए तंज करने लगा, जिस पर वो बजाय जवाबी कार्रवाई करने के उसकी बात मुकम्मल इग्नोर करके आंखें बंद कर लेती है। बूढ़े बाबा ने मुझे जॉब से निकाल देना है। वो रोतू सा चेहरा बनाकर बोली, तो किसने कहा था मेरे साथ आने के लिए? वो बेजारी से, जरूरी था। वो अपना सर उठाकर खासा जोर देकर गोया हुई। कोई जरूरी नहीं था, सब पता है मुझे। तुम्हें डर था कि कहीं मैं जमीन से न पिट जाऊं। वो उतर आकर बोला, मुझे क्यों डर लगने लगा? तुम्हारी जिंदगी है, तुम चाहे जमीन से पिटकर उसे खराब करो या उसे युसरा से, मुझे क्या? वो बेनियाजी से कंधे उचकाकर खिड़की से बाहर की जानब देखने लगी। करेक्टरलेस ठरकी। वो मुंह ही मुंह में मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। मुझे आवाज आ रही है। वो शाज़मा को घूर कर देखते हुए, तो क्या करूं? शाज़मा ने डराने के बजाय उल्टा चढ़ाई की, तो वो थूक निगलने लगा। नहीं, बस बता रहा था। वो फौरन ही भीगी बिल्ली बनकर जुमे लहजे में गोया हुआ। वो थकन से चूर थी। ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर लगते ही उसे नींद आने लगी। थोड़ी ही देर में उसे नींद ने अपने गोश में ले लिया। उधर आराम से सर रख लो। वो बैठकर सो रही थी। हर बार नींद का एक गहरा झोंका आते ही उसका सर लटक जाता और आंख खुल जाती। अब्दुल मनान ने बड़े प्यार से ऑफर दी तो उसने फौरन कबूल करते हुए उसके कंधे से अपना सर टिका दिया। शाज़मा पूरे रास्ते बेफिक्र होकर सोते हुए आई और अब्दुल मनान दीवानों की तरह पूरे रास्ते उसे तकते हुए। क्या फिर हमें चादर से चढ़कर जाना पड़ेगा? शाज़मा मुंह सोड़कर लटकती हुई चादर देखकर बोली, नहीं नहीं डार्लिंग, तुम आगे रास्ते जाओ, सामने ही गब्बर की तरह बूढ़े बाबा तुम्हें खड़े न मिले तो मेरा नाम बदल देना। वो झुंझलाकर चादर पकड़कर बोला, बल्कि पहले तुम चढ़ो, खामखा पीछे से गिर विर गई तो नुकसान हो जाना है। वो शाज़मा को चादर पकड़ाते हुए संजीदगी से गोया हुआ, चलो शुक्र, तुम्हें मेरी कदर तो आई। वो चादर पकड़कर उतराते हुए कहने लगी, ओ हेलो, खुश फहमी की दुकान, मैं अपनी गार्डन की बात कर रहा था। तुम इतनी ऊंचाई से गिरोगी तो गार्डन में अच्छा खासा बड़ा गड्ढा हो जाना है। मानो उसने टकाकर जलील किया था। ये कोई लफ्ज मुझे बाद में ले लेना, अभी चलो। अब्दुल मनान उसके घूरने को मुकम्मल इग्नोर करते हुए कहने लगा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इन दोनों ने अल्लाह करके आधा मरहला पार ही कर लिया था जब शहाब साहब की गसीली आवाज दोनों के कानों की समाज से टकराई। मारे खौफ के शाज़मा के हाथ पांव फूल गए। उसके हाथ से चादर की पकड़ ढीली होते ही वो तेजी से नीचे की जानब गिरने लगी। बच्ची, तुमने तो मेरा आज हार्ट फेल ही कर देना है। क्यों दुनिया से एक हैंडसम लड़का काम करने पर तुली हो? शाज़मा तेजी से नीचे की तरफ गिर रही थी कि अब्दुल मन्नान ने उसका हाथ थाम लिया। अब वो सिर्फ अब्दुल मन्नान के हाथ के सहारे हवा में लटकी हुई थी। शाज़मा ने अपनी पूरी जान से चीखना शुरू कर दिया था। अरे चीखना बंद करो, मैंने पकड़ लिया है तुम्हें। शाज़मा का ज़हन मारे खौफ के मफलूज हो चुका था। वो नीचे गिरने के डर से अभी तक आंखें बंद करके चीख रही थी।
ओह हाँ, मैंने देखा नहीं। उसके बोलेपन पर अब्दुल मनान अपना सर चादर से लगाकर नो डाउट आकर बढ़ते वक्त ये वाकई ही छन्नी लेकर खड़ी थी। बूढ़े बाबा, क्या हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर? कुछ करें। शहाब साहब इत्मीनान से खड़े पूरा तमाशा देख रहे थे। मिस शाज़मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप? अभी शहाब साहब बोल ही रहे थे कि वो तेजी बीच में बोल पड़ी। अरे लेक्चर बाद में दे लेना बूढ़े बाबा, पहले मुझे बचा तो लें, यहाँ बच्ची की जान जा रही है और आपको उम्मीदों की पड़ी है। शहाब साहब का मुंह मारे शौकड़ के खुला का खुला रह गया था, जबकि अब्दुल मन्नान हवा में लटका होने के बावजूद कहका लगाए बगैर न रह सका। बूढ़े बाबा, एंग्री यंग मैन वाले लुक्स बाद में दे लीजिएगा, अभी पहले बचा लें। अब्दुल मन्नान की पकड़ भी अब ढीली पड़ रही थी। उसके लिए एक हाथ से शाज़मा को पकड़ना और दूसरे हाथ से चादर पर अपना पकड़ बरकरार रखना अब काफी कठिन होता जा रहा था। तुम दोनों इसी काबिल हो। शहाब साहब गुस्से से गोया हुए। मानी प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। वो मिनती अंदाज में बोली, कभी नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। अब्दुल मनान ने पूरा एतमाद लहजे में इत्मीनान बख्श जवाब दिया, चलो एक डील कर लेते हैं। शहाब साहब अपना गुस्सा जब्त करते हुए ऑफर करने लगे, बूढ़े बाबा, क्या बुढ़ापे में दिमाग चल गया है? हवा में लटका कर कौन डील करता है? अब्दुल मनान दांत किचकिचाते हुए चीखने लगा, तुम दोनों खुद लटके हो यहाँ, मैंने नहीं लटकाया, इसलिए अपनी गलती का सेहरा मेरे सर पर मत बांधो। डील करना है तो जल्दी बोलो, वरना मैं जा रहा हूँ। शहाब साहब बेनियाजी जाहिर कर रहे थे। यकीन माने, जालिम दादू की हिस्ट्री में आपका नाम सुनहरे हरूफों से लिखा जाएगा। अब्दुल मनान खूब दहाइयाँ दे रहा था, मगर शहाब साहब पर उसका कोई असर न था। मेरा हाथ छूट रहा है, शाज़मा रोतू सा चेहरा बनाकर चीखी। पसीना आने के सबब उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ रही थी। शहाब साहब ये सुनहरा मौका कैसे हाथ से जाने दे सकते थे? उन्हें पूरा यकीन था कि अब्दुल मनान शाज़मा की खातर इस वक्त हाँ कर देगा। चले, मंजूर है मुझे आपकी डील, मिल लूंगा मैं आपके बेटे से, बस अब तो मदद करें। अब्दुल मनान के हाँ करते ही शहाब साहब का चेहरा खुशी से चहक उठा था। उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलवाकर दोनों की नीचे उतरवाने में मदद की। ये नालायक अभी तक मीटिंग में आया क्यों नहीं? शहाब साहब का पारा हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा था। कासम प्रेजेंटेशन देते हुए एक बार फखराना पूरे मीटिंग रूम में नजर डालता है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमें अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी चाहिए। तो क्या आप लोग मुतफिक हैं? कासिम के कहते ही सब उसकी बात से मुतफिक होकर इस बात में सर हिलाने लगे। मैं मुतफिक नहीं, अब्दुल मनान बरहम से कहता हुआ जब मीटिंग में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। गधे, आने में इतनी देर क्यों कर दी? शहाब साहब उसके बराबर में बैठते ही घूर कर पूछने लगे। इतनी मोटी फाइल पकड़ा कर आ गए थे, इंसान का बच्चा हूँ जिनका थोड़ी, पढ़ने में देर तो लगेगी ना? वो शहाब साहब की जानब मुंह बसोर कर देखते हुए बोला, मैं दावे से कह सकता हूँ तुम पढ़कर नहीं आए हो। शहाब साहब के कहते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई थी। वाह बूढ़े बाबा, आप तो मेरी काबिल शख्सियत से अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं। वो एक आंख दबाकर मजीद शहाब साहब को तैश दिलाने लगा। तुम मुतफिक क्यों नहीं हो? कासम नहायत संजीदगी से इस्तफसार करने लगा, क्योंकि अब्दुल मनान के अलावा सभी उसकी बात से मुतफिक थे। सबकी नजरें अब अब्दुल मनान पर टिकी थी। सभी उसके राजी ना होने की वजह जानने के लिए तजस्सुस में बैठे थे। और उसके पास ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसमें कीमतें बढ़ाए बगैर ही प्रोडक्ट को मजीद मियारी बनाकर मार्केट में उसकी सेलिंग में इजाफा किया जा सकता है। वो नहायत स्टाइल से अपना एक पाँव दूसरे पाँव पर रख कर कासम की जानब देखता है, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं। उसका जवाब सुनते ही शहाब साहब का दिल चाहा अपना सर सामने दीवार से दे मारे, जबकि बाकी सब में बरान दबी दबी हंसी हंसने लगे थे। मुझे अंदाजा था उसने ऐसा ही कोई उल्टा सीधा जवाब देना है। शहाब साहब मुंह ही मुंह बुड़बुड़ाए। कासम का मुंह तो गुस्से से पूरा लाल हो गया था। मैं कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं दे रहा, जो तुम्हारा मिस हो गया है तो मैं दोबारा दूं। सामने फाइल पड़ी है, खोलकर पढ़ लो। कासम ने बामुश्किल अपना गुस्सा पीते हुए कहा। ओह, मैं आपको बता दूं मिस्टर कासम, आपकी इस फाइल में मुझे एक भी बात काम की नहीं लगी।
ہمیں صرف ایڈورٹائزنگ اور لوگوں کو اپنا پروڈکٹ پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ قیمت بڑھا کر معیاری چلانے کی۔ عبد المنان کا پورا اعتماد لہجے میں جواب دینا تھا کہ شہاب صاحب مارے حیرت کے ایک دو ثانیوں کے لیے سکتے میں چلے گئے تھے۔ تو تم کہنا چاہ رہے ہو کہ صرف ایڈورٹائزنگ کرنے سے تمہارے پروڈکٹ کی سیل بڑھ جائے گی؟ قاسم کو اس کا جواب کرارے تماچے کی طرح محسوس ہوا تھا۔ وہ بفر کر پلٹ وار کرنے آیا۔ بالکل، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک عام عورت کوئی بیوٹی پروڈکٹ اٹھا کر اس کے انگریڈینٹ پڑھ کر خریدے، مگر ایک خوبصورت سی ایکٹریس کو دیکھ کر اس جیسی خوبصورت بننے کی چاہ میں ضرور خریدتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، سمجھے بچے؟ اس نے کوئی لمبی چوڑی پریزنٹیشن پیش نہیں کی تھی، بس دو تین جملوں سے ہی اس نے سب کو اپنی بات پر قائل کر لیا تھا۔ تم واقعی پوری تیاری سے آئے تھے؟ شہاب صاحب نے بے یقینی سی کیفیت میں پوچھ رہے تھے۔ میٹنگ روم سے نکلتے وقت نہیں، آخری جملہ سن لیا تھا میں نے اس کا، اس لیے اپنے تجربے کے مطابق رائے دی، بس۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر چلا گیا، جبکہ شہاب صاحب اس کی ذہانت پر الجھ کر رہ گئے تھے۔ کچھ راتوں سے ایک خواب مسلسل آ رہا تھا، وہی پکارتی ہوئی آوازیں، وہی دروازہ، پر آج خواب میں عبد المنان نے خود کو اس کمرے میں پایا۔ کمرے کی ساری بتیاں فانوس روشن تھے، ایک خوبصورت سی مقدر دھن بج رہی تھی۔ اچانک سامنے زرمین نظر آئی، حویلی کے مالک کی بیٹی زرمین۔ وہ اسی کی جانب آ رہی تھی۔ مانی، میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ اس کے کہتے ہی عبد المنان نے اس کے ساتھ ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیا۔ وہ کمرہ اس قدر کشادہ تھا کہ دونوں آرام سے ڈانس کر رہے تھے۔ زرمین کالے رنگ کی خوبصورت سی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی، بالوں میں جوڑا بندھا ہوا۔ وہ حسین و جمیل پری مسکرا رہی تھی۔ ایک دم اچانک اس کی نظر کمرے میں موجود بڑے سے شیشے پر پڑی، جس میں زرمین کے عکس کی جگہ اسے دوسری زرمین نظر آنے لگی، وہی خوبصورت و حسین لڑکی جو اسے زرمین کے نام سے حویلی میں ملی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سفید دیکھ کر وہ بری طرح چونک کر پیچھے کی جانب گرا۔ اللہ! گرتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ ایک عجیب سا خوف طاری تھا پورے جسم میں۔ اتنی خوفناک آنکھیں! وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک گہری سانس بھر کر گویا ہوا۔